Hello students, welcome back in our geography class. Today we are going to continue our 5th chapter, natural vegetation. And our today's topic is tropical thorn forest. Students, the tropical thorn forest occur in the areas which receives rainfall less than 50 centimeter. थॉर्न फॉरेस्ट उन एरियाज में होते हैं जहां पर रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से कम होती है. So it means these consist of variety of grasses and shrubs, right? And basically, these forests includes some of the semi-arid areas of southwest Punjab, Haryana, Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh, and Uttar Pradesh. And in these forests, plants remains leafless. खासियत होती है थॉर्न फॉरेस्ट की कि पेड़ पौधे जो हैं लीफलेस होते हैं, पत्तियां नहीं होती हैं अधिकतर समय. एंड गिव एन एक्सप्रेशन ऑफ स्क्रब वेजिटेशन, और ऐसा नजर आता है कि रियलिटी में पेड़ नहीं है बल्कि झाड़ियां हैं. द इम्पोर्टेंट स्पीसीज फाउंड इन दिस रीजन आर बबूल, बेर, वाइल्ड डेट पाम, खैर, नीम, खेजड़ी, पलाश, टस्की ग्रास, and the height of the tusky grass is nearly 2 meters above. So these are some of the major plant cover found in the tropical thorn forest. See, इस तरीके का vegetation cover, छोटी छोटी पत्तियां, ताकि evaporation ज्यादा ना हो सके. Now let's move to the other forest cover, and this is the montane forest. नाम से ही है काफी clear that the montane forests are found in the mountainous area. The decrease in temperature with the increasing altitude, which is called normal lapse rate, it leads to a corresponding change in the natural vegetation. हम सभी जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है. तो एल्टीट्यूड इंक्रीज और टेम्परेचर डिक्रीज की वजह से नेचुरल वेजिटेशन में भी चेंजेस आते हैं. एंड द माउंटेन फॉरेस्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, the northern mountain forest and the southern mountain forest, right? हमारे इंडिया में दो तरीके के माउंटेनियस कवर है. एक हिस्सा टेम्परेट जोन में आता है जिसे हिमालय कहते हैं, और एक हिस्सा ट्रॉपिकल जोन में आता है जिसे पेनिनसुलर माउंटेनियस रेंजेस कहते हैं. प्लेटू हैं, but some of the altitude areas called the mountains. So let's start with the Himalaya. The Himalaya ranges show a succession of vegetation from the tropical to the tundra. Himalayan region में हम सभी जानते हैं there are 3 parallel ranges, और इन parallel ranges पर tropical से लेकर के tundra तक का vegetation type found होता है. The deciduous forest are found in the foothills, जहाँ foothills में deciduous forest मिलते हैं. It is succeeded by the wet temperate type of forest between the altitude 1000 to 2000 meter. वहीं जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं 1000 से 2000 मीटर पर, तो वेट टेम्परेट फॉरेस्ट कवर मिलना शुरू हो जाते हैं. एंड इन द हायर हिल रेंजेस ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, हिली एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल, उत्तरांचल, एवरग्रीन ब्रॉड लीव्स ट्रीज सच एज ओक एंड चेस्टनट आर प्रीडोमिनेंट. फिर और ऊंचाई पे चलते हैं 1500 से 1750 मीटर, यहां मिलते हैं पाइन फॉरेस्ट, and this is the well developed zone. Now with the cheer pine as a very useful commercial trees, और ये इसका commercial usefulness ब्रिटिशर्स ने अपने समय में बताया था. देवदार, a highly valued endemic species जो कि बहुत तेजी से खत्म हो रहा है, ये मिलता है वेस्टर्न पार्ट पर हिमालय रेंजेस. देवदार is a very durable wood which is mainly used in the construction activity, और इसी वजह से बहुत तेजी से देवदार के पेड़ काटे जा रहे हैं. Similarly, the chinar, the walnut, which sustain the famous Kashmir handicrafts. चिनार और वॉलनट जिसने आज भी कश्मीर के हैंडीक्राफ्ट को कायम किया हुआ है, वो भी इसी एरिया में मिलते हैं. Blue pine and spruce appears at the altitude of 2225 to 3048 feet. And at many places in this zone, temperate grasslands are also found. लेकिन जैसे जैसे हम हायर एरिया पर जाते हैं, अल्पाइन फॉरेस्ट और पास्चर एरियाज डेवलप होते हैं. सिल्वर फर्स, जुनिपर्स, पाइन्स, बर्च, rhododendrons, these are some of the species. They occur between the height of 3000 to 4000
meter. The pastures are used extensively for the transhumance by tribes in this area, and these important tribes which survive in this highly elevated regions, and they, using the system of movement, they migrated according to the season, and these tribes are the Gujjar, the Bakarwals, the Bhutias and the Gaddis. ये सीजनल मूवमेंट करने वाली ट्राइब है जो विंटर्स में नीचे पहाड़ों पर आ जाती है शिवालिक पर, और जैसे विंटर खत्म होता है समर की शुरुआत होती है, दे start moving at the upper areas. The southern slope of the Himalaya carry a thick vegetation cover because of relatively higher precipitation. जो साउदर्न पार्ट का है हिमालय का, वहां पर थिक वेजिटेशन कवर मिलता है. वी आर टॉकिंग अबाउट द शिवालिक पार्ट. और यहाँ पर ये नॉर्थ फेसिंग ड्रायर से बिल्कुल ऑपोजिट है. एट हायर एल्टीट्यूड मॉसेस एंड लाइकेन्स, और अगर हम और ऊपर जाते हैं 4000 मीटर के और अबव, एवरेज एलिवेशन है 6000 मीटर, तो जैसे जैसे हम और ऊंचाई पे जाते हैं वैसे वैसे वेजिटेशन कवर डिफरेंशिएट हो जाता है. ब्लास्ट में बचता है मॉसेस एंड लाइकेन्स, काई जिसे कहते हैं, ऐसी वनस्पति, ऐसा वेजिटेशन जो कि टुंड्रा वेजिटेशन का एक टाइप है. तो ये सब तो बात थी हमारे नॉर्दर्न वेजिटेशन कवर की. नाउ लेट्स एग्जामिन द साउदर्न माउंटेन फॉरेस्ट. द साउदर्न माउंटेन फॉरेस्ट इंक्लूड द फॉरेस्ट व्हिच इज फाउंड इन द 3 डिस्टिंक्ट एरियाज ऑफ द इंडियन पेनिनसुला. और ये 3 डिस्टिंक्ट एरियाज हैं. पहला द वेस्टर्न घाट्स, द विंध्यस and the Nilgiris, as they are closer to the tropics and only 1500 meter above the sea level. So the vegetation is temperate in the higher region and the subtropical on the lower region. खासियत ये है कि पेनिनसुला के जो एलिवेशन है ये एवरेज 1500 तक है. ज्यादा हाईली एलिवेट ना होने के कारण यहाँ पर 2 तरीके का वेजिटेशन कवर होता है. अबव एरिया में टेम्परेट वेजिटेशन और बिलो एरिया में, लोअर एरियाज में सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन. स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट द वेस्टर्न घाट, केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका. स्टूडेंट्स, द टेम्परेट फॉरेस्ट आर कॉल्ड शोलाज इन द नीलगिरीज. टेम्परेट फॉरेस्ट को रीजनल लैंग्वेज में नीलगिरी माउंटेनियस एरिया में शोलाज कहा जाता है. नीलगिरी, अन्नामलाई और पलानी हिल्स. And some of the other trees of this forest which is having the economical significance, they are magnolia, laurel, cinchona and betel. कुछ फॉरेस्ट कवर सतपुड़ा और मैकाल रेंजेस में भी मिलते हैं, यानी कि जो नॉर्दर्न पार्ट है डेक्कन का वहां भी मिलते हैं. Now littoral swamp forest. Students, India has a rich variety of wetland habitats. दलदली इलाके की रिच वैरायटी है इंडिया में, लेकिन आज इस दलदली इलाके में पाए जाने वाली वेजिटेशन कवर का 70% हिस्सा पैडी कल्टीवेशन के लिए यूज होना शुरू हो गया है, यानी कि जंगल कटने लगे हैं. एंड द टोटल एरिया ऑफ वेटलैंड इज 3.9 मिलियन हेक्टेयर. 2 साइट्स हैं हमारे यहाँ पर, 2 साइट्स लाइक चिल्का लेक उड़ीसा एंड द केलादिल नेशनल पार्क भरतपुर. दे आर प्रोटेक्टेड एज वाटर फाउल हैबिटेट्स अंडर द कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स. दलदली टोपोग्राफी के लिए जाने जाते हैं ये इलाके, और जो एरिया कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स है उसको रामसर कन्वेंशन कहा जाता है. एन इंटरनेशनल कन्वेंशन इज एन एग्रीमेंट अमंग द मेंबर्स स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड नेशन. ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन एग्रीमेंट होता है. रामसर कन्वेंशन मतलब ये वो एरियाज हैं जिनके लिए देश एग्रीमेंट करता है यूनाइटेड नेशन के साथ कि इस वेजिटेशन कवर को प्रिजर्व करके रखेगा, सुरक्षित बनाएगा. तो स्टूडेंट्स, द कंट्रीज वेटलैंड हैव बीन ग्रुप्ड इनटू 8 कैटेगरी. इंडिया के पूरे वेटलैंड्स को हम लोग 8 कैटेगरी में फाइंड आउट कर लेते हैं, कैटेगराइज कर लेते हैं. एंड दीज 8 कैटेगरीज आर द रिजर्वॉयर ऑफ द डेक्कन प्लेटू इन द साउथ टुगेदर विद द लेगून्स एंड द अदर वेटलैंड. सबसे पहली टोपोग्राफी है डेक्कन प्लेटू के वेटलैंड्स एरियाज, लेगून्स एरिया जो कि वेस्ट कोस्ट पे मिलते हैं. सेकेंड, द वास्ट सलाइन एक्सपेंसेस ऑफ द राजस्थान, गुजरात एंड गल्फ ऑफ कच्छ. राजस्थान,
गुजरात और गल्फ ऑफ कच्छ में पाया जाने वाला सलाइन हिस्सा, ये भी वेटलैंड टोपोग्राफी का प्रतीक है। फ्रेश वाटर लेक्स एंड रिजर्वॉयर्स फ्रॉम गुजरात ईस्टवर्ड थ्रू राजस्थान टिल केवलादेव नेशनल पार्क एंड मध्य प्रदेश इंक्लूडेड इन इट। थर्ड है हमारा ये फ्रेश वाटर लेक्स वाला और रिजर्वॉयर वाला हिस्सा, जिसमें गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों के रीजन शामिल हैं। फोर्थ है डेल्टा वेटलैंड एंड द लेगून्स ऑफ इंडिया, ईस्ट कोस्ट वाला। फर्स्ट वाला वेस्ट कोस्ट का था, अब ये है ईस्ट कोस्ट यानी कि चिल्का लेक वाला एरिया। फिफ्थ द फ्रेश वाटर मार्शीज ऑफ द गंगटेक प्लेन। सिक्स्थ द फ्लड प्लेन्स ऑफ द ब्रह्मपुत्रा, द मार्शीज एंड swamps in the hills of northeastern India and the Himalayan foothills. Seventh the lakes and the river of the mountain region of Kashmir and Ladakh. And last, eighth, the mangrove forest and the other wetlands of the island. So these are the 8 category of the swampy littoral forest. Mangrove grow along the coast in the salt marshes. Mangrove vegetation की खासियत है कि ये कोस्टल एरिया में ग्रो होती है, सॉल्ट मार्शीज में टाइडल क्रीक्स होते हैं, यहाँ मड फ्लैट्स होते हैं और एस्चुरीज पाई जाती है। ठीक, दलदली इलाके में उगा हुआ जंगल। They consist of number of salt tolerant species. खासियत यह है कि दलदली इलाके नमक वाले सलाइन होते हैं और यहाँ की वनस्पति यानी कि वेजिटेशन की खासियत कि ये सॉल्ट टॉलरेंट पावर रखते हैं। वैसे अगर हम नॉर्मली खारे पानी से पौधे उगाएं तो पॉसिबिलिटीज नहीं होती है, लेकिन ये कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जो खारे पानी को भी सह लेती है। क्रिस क्रॉस्ड बाय द क्रीक्स ऑफ स्टेगनेंट, और वनस्पति क्रिस क्रॉस लगती है, देखो एक दूसरे में उलझी हुई टाइप में, जिसको जहां बेंट मिलता है वो वहीं पे घूम जाता है और इतना ज्यादा नेचुरल कवर होता है कि ये हजारों वैरायटी ऑफ बर्ड्स के शेल्टर बन जाते हैं। इतना जंगल, इतना बड़ा जंगल, इतने वैरायटी ऑफ पेड़ पौधे, और हम सभी जानते हैं कि प्लांट्स एंड द ट्रीज आर द हैबिटेड प्लेस ऑफ द बर्ड्स। So these swampy forests are the shelter areas of the variety of birds. Students, in India, the mangrove forest is spread over 6,740 square kilometers, जो कि वर्ल्ड का 7% है, and they are highly developed in the Andaman and Nicobar Islands. सबसे ज्यादा ऐसे फॉरेस्ट अंडमान निकोबार में, then Sundarban Deltaic area, West Bengal, and other areas are which is significance Mahanadi, Godavari and Krishna delta. And these forests too are being encroached upon and hence need conservation. आज ह्यूमन एक्टिविटी से मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि आज मैंग्रोव स्वाम्पी लिटोरल फॉरेस्ट का 70% हिस्सा एग्रीकल्चर वर्क में यूज आ रहा है, तो इस फॉरेस्ट कवर को भी कंजर्वेशन की रिक्वायरमेंट है। So hope you guys understand the different types of vegetation cover. In my next video, I will explain the forest cover in India according to some data. Till then, thank you and have a nice day.